Hello everyone, welcome back to my channel Easynomics. I am Shweta Goyal and in today's video I am going to discuss the most important topic of microeconomics, which is being asked in the economic optional of civil services but the least discussed topic. So yeah, I am going to discuss the Marshallian versus Walrasian equilibrium. So yeah, let's get started. Before beginning with the topic, there are two things to keep in mind. What is the theory given by the Marshall is cardinal utility theory, and the theory was ordinal utility theory. Both I have been discussed in my previous videos. I'll be attaching the link in the description box, so you can go and first watch those videos, clear your concepts with the cardinal and ordinal utility theory, then come back and watch this video in the continuity of those 2 or 3 videos. Okay. Now generally मैं बता देती हूँ, Marshall assumed that utility is constant. Utility can be measured in terms of utils, that is in absolute terms. Now there are 3 types of equilibrium: the stable, unstable and neutral. What is stable equilibrium? Stable equilibrium is the equilibrium where if the equilibrium point is disturbed, for example तुम 10 पॉइंट तुम्हारा इक्विलिब्रियम था, तुम 11 पे आ गए तो तुम वापस 10 पे आ जाओगे अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट से, उन्हें स्टेबल बोलते हैं. जो एक बार डिस्टर्ब होने के बाद वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आते उन्हें अनस्टेबल बोलते हैं, और जो रिमेन अनअफेक्टेड रहते हैं उन्हें न्यूट्रल बोला जाता है. सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट. नाउ लेट्स मूविंग टू दी केसेस. We are going to discuss the 4 cases: case 1, case 2, case 3 and case 4 to compare, and I think we will be having around 12 cases in total जो तुम्हें पढ़ने हैं. एंड एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है तो आपको 12 के 12 केसेस ड्रॉ करके आने होते हैं. बेशक आप अगर 150 मार्क का 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो आप अपने वर्ड्स कम कर सकते हो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद द केसेस और द डायग्राम्स. तो आपको ऐसे ही करने हैं. Now moving to the case 1. Case 1, M denotes the Marshallian equilibrium, W denotes the Walrasian equilibrium. मैंने हर जगह सेम किया है, MW, तो दोनों का equilibrium केस डिसाइड किया है. Now in first case I have taken the normal demand curve and normal supply curve. Normal demand curve downward sloping, normal demand curve downward sloping, normal supply curve upward sloping. Now कोई भी curve, what do you understand by the upward and downward? Upward shows that there is direct relationship. If one variable increases, then the other variable will also increase. And downward means indirect relationship, inverse relationship. It means if one variable increases, the other will go down. So this reflects the inverse relationship, this reflects the direct relationship. ये किसी भी कर्व का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है. हमारा प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है. ये नॉर्मल सिचुएशन है. तो हम नॉर्मल सिचुएशन में वी आर चेकिंग विद मार्शल एंड वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम. सो बेसिकली इन केस ऑफ मार्शल दी क्वांटिटी साइड डोमिनेट्स. जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे ना, आप आंसर में लिखोगे तो हमेशा इस एक्स एक्सिस पे एडजस्टमेंट्स होंगी, लेकिन जब भी वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम की बात होगी आपकी हमेशा वाई एक्सिस पे एडजस्टमेंट होगी, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ प्राइस. तो यहाँ पे क्वांटिटी इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम एंड हेयर प्राइस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ लेट्स सी. सो बेसिकली दिस इज़ आर डिमांड कर्व. एक पहला केस बहुत अच्छे से समझना, रेस्ट आपको समझने में बहुत आसानी होगी. सो बेसिकली दिस इज़ योर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था. नाउ अब हम क्या करते हैं, लेट्स से द केस ऑफ जहाँ WTP रिफ्लेक्ट्स द विलिंगनेस टू पे एंड विलिंगनेस टू सेल. विलिंगनेस टू पे, it means the points on demand curve. Willingness to sell means the points on the supply curve. So basically when your willingness to pay is greater than willingness to supply, it means यहाँ पे ये वाला पॉइंट, यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सो योर विलिंगनेस टू पे इज ग्रेटर देन विलिंगनेस टू सप्लाई. व्हाट डज दिस मीन? This means that firms will increase the production. When firms will increase the production, their cost of production increases.
व्हेन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस देयर प्राइस इंक्रीजेस, क्योंकि प्राइस का, सप्लाई का प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वो क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उनका प्राइस भी बढ़ेगा, तो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया तो उनका प्राइस भी बढ़ने लगा, तो वो अपने कर्व पे यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने लग गए। जब वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो प्राइस के बढ़ने की वजह से कंज्यूमर ने डिमांड करना कम कर दिया। जब उन्होंने डिमांड करना कम कर दिया तो कंज्यूमर डिमांड की वजह से यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर गए। तो ये सप्लाई वाले ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, और वापस आप कहाँ आ गए, इक्विलिब्रियम में। सो दिस इज़ नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हुआ लेकिन आप अगेन इक्विलिब्रियम में आ गए, तो इट मीन्स मार्शियलियन इक्विलिब्रियम इन केस 1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी वॉलरेशियन। यहाँ पे हमें प्राइस में एडजस्टमेंट्स करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। नाउ लेट्स से दिस पॉइंट फॉर वेयर योर प्राइस, मार्केट प्राइस इज हायर देन योर इक्विलिब्रियम प्राइस। सो योर दिस प्राइस इज हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। सो आपके पास क्या होगी, इतनी सप्लाई और इतनी डिमांड। इट मीन्स यू आर हैविंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। Whenever you are having the situation of excess supply, your inventory will increase. When your inventory will increase, your price start decreasing, because आपके पास ज़्यादा सप्लाई होती है तो उसका प्राइस जो होता है वो कम हो जाता है। जब प्राइस कम होगा तो आप सप्लाई कम करोगे, क्योंकि कम प्राइस मिल रहा है, इन्वर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस कम क्वांटिटी कम, तो कम सप्लाई करोगे, लेकिन डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि कम प्राइस पे अब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो यहाँ से supply will decrease but demand will increase. So basically again you will be reaching to the equilibrium. So what does that shows? This shows that you are in equilibrium, and equilibrium is stable for both Marshall and Walrasian in case of the normal shape of demand and supply curve. You got it? Okay. Move to the case 2 where your demand and supply curve are downward sloping and demand is flatter than supply curve. इसका एक केस मैं करा रही हूँ जिसमें डिमांड इज़ फ्लैटर देन सप्लाई कर्व है, और जो दूसरा केस है दैट इज़ डिमांड कर्व इज स्टीपर देन सप्लाई कर्व। दैट इज़ आई एम लीविंग फॉर ऑल ऑफ यू, यू सॉल्व इट एज योर होमवर्क एंड अपने आंसर्स पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी चेकिंग योर आंसर्स, ओके। सो बेसिकली द फर्स्ट केस इज बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग बट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया। नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ मार्शल। मार्शल में क्या हुआ, दिस वॉज योर इक्विलिब्रियम। नाउ लेट्स टेक दिस वाला केस, इधर वाला, वेयर योर विलिंगनेस टू पे इज लेसर देन योर विलिंगनेस टू सेल। अब जब ये सिचुएशन होगी, जब विलिंगनेस टू पे जो होगी वो कम होगी, सो फर्म्स विल डिक्रीज देयर प्रोडक्शन। अब जब फर्म्स अपना प्रोडक्शन कम करती हैं तो बेसिकली उनका क्या होता है, प्राइस भी कम हो जाना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन था। अब यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इट मीन्स उनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है। अगर क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन कम होने से प्राइस बढ़ जाएगा और आप इस सप्लाई कर्व में प्राइस को यहाँ की तरफ मूव करोगे। जब आप यहाँ की तरफ मूव करोगे इट मीन्स यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तुम यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हो और प्राइस बढ़ने की वजह से ही डिमांड जो होगी वो भी कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो ये इधर की तरफ। इट मीन्स अगर आपका इक्विलिब्रियम एक बार डिस्टर्ब हुआ, you are not coming back to equilibrium again in this situation when both the demand and supply curve are downward sloping. So keep in mind in such cases Marshallian equilibrium, Marshallian case is unstable equilibrium. Now let's take the case of Walrasian. In case of Walrasian, same demand and supply curve, demand curve is flatter. यहाँ पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम था। नाउ मैंने केस लिया वेयर प्राइस इज लेसर देन दी, ये वाला केस नीचे वाला, जहाँ पे आपका मार्केट प्राइस इज लेसर देन दी इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जब यहाँ पे होगा सो आपकी क्या सिचुएशन होगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी। जब यहाँ पे एक्सेस डिमांड होगा तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो नॉर्मल डिमांड कर्व का रूल है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, प्राइस बढ़ने लग गया। प्राइस बढ़ा तो आप ऐसे मूव करने लग गए डिमांड कर्व पे। अब अपवर्ड मूवमेंट हुई, अब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो तुम यहाँ पे भी इसमें अपवर्ड मूव करोगे। सो बेसिकली अल्टीमेटली यू विल रीच टू इक्विलिब्रियम अगेन। सो इन दिस केस
Marshall equilibrium is unstable, but on the other hand Walrasian equilibrium is stable. So basically Walrasian explain the equilibrium concept via price, and Marshall explain the equilibrium using the quantity. So this is the basic thing you should keep in mind. Try the case B on your own and let me know your answers in the comment section. Now moving to the case 3. In case 3 यहाँ पे मैंने assume किया था both are downward sloping. Now I am assuming that both are upward sloping. Supply तो होता ही है upward sloping. Now I am assuming demand curve is also upward sloping. यहाँ पे भी दो केस बनेंगे. Demand is steeper than supply curve and demand is flatter than supply curve. So यहाँ पे मैं ऑलरेडी डिमांड इज़ फ्लैटर का केस बता चुकी हूँ. यहाँ पे मैं डिमांड इज़ स्टीपर का केस एक्सप्लेन कर रही हूँ. जो दूसरा केस बनेगा दैट इज़ डिमांड इज़ फ्लैटर देन सप्लाई कर, वो आपको खुद करना है और अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं. सो बेसिकली इसमें क्या करा, मैंने दोनों को अपवर्ड स्लोपिंग बनाया और डिमांड को क्या रखा, स्टीपर रखा, उसका स्लोप कम रखा और एस को फ्लैटर बनाया, सप्लाई कर को फ्लैटर. नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ मार्शल. सो बेसिकली दिस वॉज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. जब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था तो विलिंगनेस टू पे इज़ ग्रेटर देन विलिंगनेस टू सेल. इट मीन्स आपकी यहाँ पे विलिंगनेस टू पे जो है वो ग्रेटर देन है विलिंगनेस टू सेल से, इक्विलिब्रियम के राइट हैंड साइड पे. सो बेसिकली यू हैव द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. जब आपकी यहाँ पे एक्सेस डिमांड होगी, सो बेसिकली व्हाट यू विल डू, यू विल इंक्रीज योर प्रोडक्शन, and when you increase your production your price will increase. So you will be moving in this direction. प्राइस प्रोडक्शन बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ गया. अब प्राइस बढ़ा है तो वैसे तो डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट द डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज. So it means your demand will move in this direction. So both are moving to the rightward direction, that is away from the equilibrium. So once your equilibrium is disturbed, you are not coming back to the equilibrium again. So it shows that Marshallian equilibrium is unstable when the both demand and supply are upward sloping and demand is steeper than supply curve. You got this case? Now moving to the walrus. वॉलरस का मैंने वही डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाया. दिस वॉज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. नाउ लेट्स टेक दिस केस व्हेन योर प्राइस इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस. सो बेसिकली ये एक्सेस सप्लाई का केस है. सो एक्सेस सप्लाई में क्या होता है, योर इन्वेंट्री विल इंक्रीज. सो आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्शन कम कर दोगे. अपना प्रोडक्शन कम करोगे तो आपके प्राइस जो होंगे वो कम हो जाएंगे. तो प्राइस की डाउनवर्ड मूवमेंट ऐसे रिफ्लेक्ट करोगी जिसमें क्वांटिटी और प्राइस दोनों क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. अब जब प्राइस कम हो रहा है तो योर डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि डिमांड जो है वो यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग है. इट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी. सो यहाँ पे जस्ट बिकॉज वी हैव द डायरेक्ट रिलेशन, सो व्हेन योर प्राइस डिक्रीजेज योर डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज. सो ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड अल्टीमेटली विल बी रीचिंग टू द इक्विलिब्रियम. सो वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इन दिस केस. ओके, सो यू आर क्लियर विद द केस 3. इसका जो बी पार्ट होगा दैट इज़ व्हेन डिमांड इज फ्लैटर देन सप्लाई कर, वो आपको खुद करना है. एंड बोथ द केसेस, दोनों मार्शल एंड वॉलरेशियन दोनों के केसेस बनाने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है. Basically now we are moving to the case 4 of today's class, where I assume that I have taken the case where the supply curve is downward sloping, which is opposite to the what we normally assume, and the demand curve is upward sloping. So basically ये एकदम ही उल्टा केस है. So अब हम इसमें वॉलरेशियन और इसको देखेंगे. इसमें बस एक ही केस बनता है, बस इन दोनों में स्टीपर और फ्लैटर का केस बनता है. सो मैंने क्या करा, सप्लाई कर्व को डाउनवर्ड बनाया, डिमांड कर्व को अपवर्ड बनाया मार्शल एंड वॉलरेशियन के केस में. सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है. अब मैंने क्या किया, विलिंगनेस टू पे इज़ ग्रेटर देन विलिंगनेस टू सप्लाई. अब विलिंगनेस टू पे ग्रेटर कब होती है, जब डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई होता है. तो ये वाला केस आया. सो व्हेन योर विलिंगनेस टू पे इज़ ग्रेटर, देन व्हाट फर्म विल डू, फर्म विल इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. जब फर्म अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी,
सो बेसिकली उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसका जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। सो बेसिकली प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस। सो कहाँ पे मूवमेंट हुई? इस तरफ प्राइस इज डिक्रीजिंग, प्राइस इज डिक्रीजिंग ना, तो नीचे की तरफ जा रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन प्राइस कम हो रहा है, तो राइट वर्ड जा रहे हो। अब जब आपका प्राइस कम हो रहा है तो आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जस्ट बिकॉज आपका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है तो आपका प्राइस कम होने की वजह से डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। सो बेसिकली प्राइस सप्लाई आपका कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, प्राइस कम हुआ। हाँ, तो प्राइस कम होने की वजह से आपकी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। सो बेसिकली व्हाट यू विल फील दैट वंस यू, तो ये यहाँ पे आप एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये कभी भी वापस इक्विलिब्रियम में दोनों नहीं आएंगे। तो इट मीन्स मार्शेलियन इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इन दिस केस। नाउ मूविंग टू दी वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दिस वॉज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो हमने क्या करा, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो बेसिकली ये वाला पॉइंट लिया। जब हमने ये वाला पॉइंट लिया तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की। जब हमारे पास एक्सेस डिमांड होती है सो हम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्राइस कम हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्राइस कम होगा। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे प्राइस कम होगा, क्योंकि सप्लाई जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, प्राइस कम होगा, प्राइस कम होने की वजह से हम यहाँ पे मूव करेंगे और ऐसे ही डिमांड भी इस तरफ मूव करेगी। सो बेसिकली इन दिस केस बोथ मार्शल एंड वॉलरेशियन बोथ आर अनस्टेबल। सो दिस इज द concept which is mentioned as the first topic of the syllabus of microeconomics, that is the Marshallian and Walrasian equilibrium. Actually Marshall explained the partial equilibrium concept and the Walrasian explained the general equilibrium concept. So what you need to do to cover this topic entirely, first watch the video on cardinal utility theory, then watch the video on ordinal utility theory, then read these two topics from the H.L. Ahuja book to clear your concepts, then to compare between two वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपके सारे केसेस कवर कर दिए हैं। यू वोंट गेट ऑल द केसेस एट वन प्लेस एनीवेयर एल्स। सो या please do study diligently. I am doing hard work for all of you. So I have covered one topic of microeconomics in the one class. If you just do these two cases and post your answers in the comment section, and also if you have any other doubt related to this topic, you can post in the comment section that also. Do subscribe my channel if you haven't done yet, and yeah, thank you, have a nice day.